So good morning students. Today we are studying about the lathe machine, types of lathe machine and specifications of the lathe machine. Lathe machine is used for performing turning operations. Turning operations are the operations in which workpiece is rotated about its own axis and cutting tool bites into the workpiece and moves parallel to the axis of the workpiece and produce a cylindrical surface. That means lathe machine operations, which are generally considered as turning operations, are used for making cylindrical surfaces or surfaces which are axisymmetric. Okay, so we move on. First of all, in this slide, you see this figure. This is a workpiece. It is rotating about its own axis in anti-clockwise direction, and this is the cutting tool, which is giving movement in this direction along the axis of the workpiece. As I told you in the first class of the machining introduction, that machine tool has to provide arrangements for holding and supporting the workpiece, and machine tool has to provide motion to the workpiece as well as to the cutting tool. So in this figure you can see the workpiece is rotating about its own axis and the tool is given movement parallel to the axis of the workpiece. So two types of motions are there. Workpiece is having rotary motion, tool is having linear motion. Now out of these two motion, one is responsible for cutting. If that motion is absent, then cutting or machining will not take place. So first of all, consider the rotation of the workpiece. If we stop the rotation of the workpiece is stationary and the tool is moving along the axis of the workpiece, then even if you have taken this depth of cut as very small, negligible depth of cut is there, then you will get a mark, a line mark over the scratch over the work surface, which will be along a straight line. मतलब क्या होगा कि यदि हम वर्कपीस को रोटेट नहीं करते हैं, टूल को हल्का सा डेप्थ ऑफ कट वो डिस्टेंस होती है जिस टूल वर्कपीस के अंदर वाइट करता है, ठीक है ना। और यदि हमने वर्कपीस को स्टॉप कर दिया और टूल को लीनियरली मूव किया तो उस केस में यहाँ पे आपको एक स्क्रैच दिखेगा, ठीक है। हमारा पर्पस था इस वर्कपीस के ऊपर सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें बोल सकते हैं कि वर्कपीस की जो मोशन है दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग, ठीक है ना। यदि वर्कपीस को रोटेट नहीं किया जाए तो यहाँ पे टर्निंग नहीं होगी, ठीक। दूसरा, आप ये भी मान सकते हो कि सर टूल को मूव नहीं किया जाए तो भी मशीनिंग नहीं होगी, तो अपन उसको भी कंसीडर करते हैं। सपोज वर्कपीस इज हैविंग रोटरी मोशन and this tool is not moving in this direction, it is moving in this direction, then what will happen? Some portion of the workpiece will be removed by this movement of the tool, ठीक है ना। यदि टूल यहाँ पे मूव करता है इस डायरेक्शन में तो होता क्या है कि वर्कपीस का अनकट पोर्शन मशीनिंग के लिए प्रेजेंट होता रहता है एज टूल मूव्स इन दिस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। सो दिस मोशन is considered as secondary motion. The motion which is primarily responsible for cutting action, that motion is known as primary motion or cutting motion. In the case of lathe or turning operation, it is the rotation of the workpiece which is considered as primary motion. Okay, and अब obviously जो दूसरी मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मोशन हो जाएगी. So in this case motion of the tool will be secondary motion. This motion is also known as feed motion. तो इसके दो मुख्य नाम होते हैं, एक कहलाती है प्राइमरी मोशन या कटिंग मोशन, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी मोशन या फीड मोशन. प्राइमरी मोशन कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेकेंडरी मोशन फीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. फीड में क्या होता है, वर्कपीस का जो अनकट पोर्शन होता है वो कटिंग के लिए हमेशा प्रेजेंट होता रहता है, ठीक है ना.
So in case of lathe or turning operations, primary motion is the rotation of the workpiece and secondary motion is the linear movement of the cutting tool. ओके यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि थोड़ा समझने की चीज़ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मशीनिंग के लिए, और हर मशीन में वो अलग प्रकार का हो सकता है। मतलब मिलिंग मशीन की प्राइमरी मोशन अलग हो सकती है, लेथ मशीन की प्राइमरी मोशन अलग हो सकती है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे बेटे? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। चल ठीक, आगे चलते हैं अपन। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया है, वी हैव designated this rotation of the workpiece as cutting motion. This is also known as cutting speed. We have formula for calculating the cutting speed is pi dn by 1000 meter per minute. For meter per minute we have written as mpm, meter per minute. इसमें क्या है, जो d है that is diameter of the workpiece, initial diameter of the workpiece, बड़ा जो diameter है that is considered as diameter of the workpiece and it is expressed in millimeter, n being the rpm, rotation per minute, revolution per minute by the of the workpiece, ठीक है ना। तो d को आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, ये डायमीटर है और किसमें एक्सप्रेस किया गया है, मिलीमीटर में। टू कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू मीटर वी हैव डिवाइडेड d by 1000, इसलिए यहाँ पे 1000 आया हुआ, और कोई रीजन नहीं। इफ वी कंसिडर फीड ऑफ दिस कटिंग टूल, देन हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसके एक्सप्रेशन का मैं एक तरीका आपको समझाता हूँ। सपोज द वर्कपीस इज रोटेटिंग इन सच अ वे that in 1 second time it revolves by 360 डिग्री। समझ में आया? 1 सेकेंड टाइम में ये वर्कपीस 360 डिग्री से मूव हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट चक्कर ये मूव हो रहा है। इन द सेम टाइम, उसी 1 सेकेंड में टूल वर्कपीस के पैरेलल जितना मूव होगा, जितनी डिस्टेंस मूव होगा, वो कहलाएगा फीड इन mm पर रिवॉल्यूशन। फिर से सुनो, इन अ सेकेंड, एक सेकेंड टाइम में वर्कपीस यदि एक चक्कर घूमता है तो उसी एक सेकेंड टाइम में टूल कितना एडवांस हो रहा है। सपोज 2 mm एडवांस हो रहा है, तब ये 2 mm इधर जा रहा है, तो इसकी जो फीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 mm पर रिवॉल्यूशन। मतलब टूल जितने समय में एक रिवॉल्यूशन लेगा उतने टाइम में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो, वर्कपीस एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लेगा उतने टाइम में टूल जितनी डिस्टेंस मूव करता है वो हो जाती है फीड इन mm पर रिवॉल्यूशन। इसमें होता क्या है कि यदि अभी आपको वर्कपीस की कुछ कटिंग एज की लेंथ दिख रही होगी, सपोज ये 5 mm है, तो जब टूल को हमने इसमें फीड किया होगा इस डायरेक्शन में और फिर ऐसे बढ़ाया होगा, तो शुरुआत में ये एक चक्कर जब पूरा होगा उस केस में ये 5 mm कट जाएगा। अब यदि टूल को हम ऐसे मूव नहीं करते हैं तो ये फर्दर मशीनिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। हम यदि चाहते हैं कि वर्कपीस की थ्रू आउट लेंथ मशीनिंग हो तो हमें टूल को इस डायरेक्शन में धीमे धीमे करके मूव करना पड़ेगा। तो ये टूल के मूवमेंट का जो रेट है दैट इज कंसिडर्ड एज फीड, ठीक है ना। अब फीड में क्या हो रहा है, मैंने बोला कि टूल की फीड है 2 mm पर रिवॉल्यूशन, तो ये जो टूल है वो जैसे ही ये वर्कपीस एक चक्कर मूव होगा उतने टाइम में फिर बाद में 2 mm आगे खिसक जाएगा। मतलब 5 mm इसकी ये कटिंग एज लेंथ थी, 5 mm पहले कट कर चुका है, फिर अगले सेकंड में 2 mm कट कर देगा, फिर एक अगले सेकंड में फिर 2 mm कट करेगा। तो ऐसे हम वर्कपीस की लेंथ को इसमें मशीन करा सकते हैं। So feed can be expressed in mm per revolution or it can be expressed in mm per minute. So how we can convert this feed from mm per revolution to mm per minute? हम इसमें सीधे सीधे n का मल्टीप्लाई करेंगे। We have to multiply this value by rpm of the workpiece. तो ये ठीक है ना। तो जैसे हमने rpm में मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, mm पर मिनट। So these two are the very important motion. One is of the workpiece, another is of the cutting tool, which is necessary for machining purpose. The motion of the cutting tool is considered as cutting speed, where motion of the
tool is considered as feed. तो इन दोनों में यदि आपको समझ में नहीं आया तो पूछो, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं, मूव होते सर फीड इन mm पर मिनट फिर से बता दीजिए। हैं। बस ये जो वैल्यू, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन दिया कि एक वर्क पीस रोटेट हो रहा है 100 आरपीएम से, वर्क पीस यस रोटेटिंग सर। बाय 100 आरपीएम एंड फीड फॉर द कटिंग ऑपरेशन इज 1 mm पर रेवोल्यूशन, ठीक है ना, 1 mm यस पर सर। रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन। मल्टीप्लाई दिस 1 mm पर रेवोल्यूशन बाय 100 आरपीएम, तो इसकी जो फीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी 100 mm पर मिनट। आवाज समझ में नहीं आई? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वैसे थोड़ा नहीं आ रहा। सपोज दिस इज F1, ठीक है, एंड दिस इज F2, ठीक है। सो दिस इज विल बी इक्वल टू F1 multiplied by this n, okay, यस सर। multiplied by n, यस ठीक, सर। आगे समझ में आया आपको? यस सर, हो गया। ठीक है ना। यस तो यस ये सर। जो आरपीएम है इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो फीड है टूल का मूवमेंट और कटिंग स्पीड है वर्क पीस का रोटेशन। लेथ के केस में, अलग अलग मशीन के केस में अलग अलग चीज हो सकती है। अब क्या होता है इसमें, आपको यहाँ पे बहुत सारे ये सर्कल्स दिख रहे, कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे होंगे, और यहाँ पे लिखा है डेप्थ ऑफ कट। एक्चुअली डेप्थ ऑफ कट वो डिस्टेंस है जिससे कटिंग टूल वर्कपीस के अंदर वाइड करता है या वर्कपीस के एक पास में उतना मटेरियल रिमूव करता है। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो डायमीटर है वर्कपीस का, से इट इज 20 mm, 20 mm है। हमने फर्स्ट पास में, एक्चुअली एक बार में हम इतना सारा कट नहीं कर सकते, इतना अपन को भी दिख रहा है, सो वी टेक मल्टीपल पासेस, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, सबसे पहले इस टूल को वर्कपीस के अंदर मूव कराया, इस डायरेक्शन में मूव कराया, डेप्थ ऑफ कट ली कितने से, 1 mm से। आया बात समझ में नहीं आया? देखो, कटिंग टूल का कटिंग एज जब तक वर्कपीस के अंदर नहीं जाएगा तब तक मशीनिंग नहीं होगी, ठीक है ना। वर्कपीस यहाँ पे अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है, टूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या मशीनिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, टूल के कटिंग एज को वर्कपीस के अंदर बाइट कराना पड़ता है, मतलब वर्क कटिंग टूल बाइट्स इनटू द वर्कपीस। अब वो डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, 1 mm ली। 1 तो mm। जब, ठीक है, तो ये आउटर डायमीटर आपको दिख रहा होगा 20 mm का, और इनर डायमीटर दिख रहा होगा जिसमें हमने डेप्थ ऑफ कट ली है 1 mm। तो ये नया जो डायमीटर बनेगा ये कितने mm का आएगा, बता सकते हो आप लोग? दिस विल बी ऑफ 18 mm, क्योंकि 1 mm इस तरफ से रिमूव हुआ और सब तरफ से 1 mm रिमूव हो रहा है, तो इसका डायमीटर ओवरऑल जो रिड्यूस होगा वो 2 mm से रिड्यूस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो डेप्थ ऑफ कट भले यहाँ पे 1 mm है, लेकिन ये वर्कपीस का जो नया डायमीटर आएगा वो कितना आएगा, 18 mm का आ जाएगा, यदि टोटल 20 mm का था। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो हमको क्या करना पड़ता है, यदि हम चाहते थे कि इस वर्कपीस जिसका डायमीटर 20 mm है, इसका डायमीटर हमको 10 mm करना है, तो जो डेप्थ ऑफ कट आएगी वो कितनी आएगी, 5 mm आ जाएगी। फॉर reducing diameter of a workpiece from 20 mm to 10 mm, the total depth of cut will be 5 mm। होगी कि नहीं होगी? अब वो 5 mm डेप्थ ऑफ कट एक बार में नहीं ली जा सकती है, क्योंकि क्या होता है, इतना ज्यादा मटेरियल कट होने के लिए आता है कि उसकी वजह से टूल सफिशिएंट अमाउंट में कटिंग फोर्स नहीं दे सकता। इसके अलावा जब कटिंग फोर्स की रिएक्शन टूल के ऊपर आएगी, टूल कटिंग फोर्स अप्लाई करेगा वर्कपीस के ऊपर, वर्कपीस चूंकि डिफॉर्म होने से मना करेगा तो अपना रिएक्शन देगा कटिंग टूल के ऊपर, तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि टूल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई जब हमको 5 mm की डेप्थ ऑफ कट चाहिए थी, तो हमको सपोज हमने उसको 5 स्टेप में ले लिया, हर बार हम कितनी लेके जा रहे हैं, 1 mm। तो शुरुआत में जो डायमीटर 20 mm था, फर्स्ट स्टेप के बाद कितना हो गया, 18 mm हो गया। हमने डेप्थ ऑफ कट कितनी ली, 1 mm, 1 mm। फिर दोबारा फिर हमने डेप्थ ऑफ कट ली 2 mm, तो डायमीटर कितना आ गया, 16 mm आ गया। 16। फिर हमने तीसरी बार 1 mm डेप्थ ऑफ कट ली, तो कितना हो गया, 16 mm आ 14 गया। mm। ऐसे 14 mm, मतलब ऐसे कम होता चला जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे आपको जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि फॉर रिड्यूसिंग डायमीटर ऑफ द वर्कपीस फ्रॉम वेरी लार्ज डायमीटर टू स्मॉल डायमीटर, you will have to take number of steps, that means this operation will be completed in number of passes। कुछ passes में तय होगी, पास हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट अपन यहाँ पे कितनी लेके जा सकते हैं। समझ में आ गया?
So now Yes, there sir. are three important parameters which are written here, and these three important parameters are for any machining operation. Maybe the operation on lathe machine, milling machine, drilling machine, grinding machine, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन पे मशीन पे अपन ऑपरेशन करते हैं तो ये तीन कटिंग पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। ठीक है ना। अब कटिंग स्पीड क्या है? इन केस ऑफ लेथ इट इज रोटेशन ऑफ द वर्क पीस विच इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट। ठीक है ना। फीड क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल अलोंग द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस। इसकी यूनिट क्या है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फीड इन mm पर रेवोल्यूशन और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फीड इन mm पर मिनट। आगे समझ में? कटिंग स्पीड, फीड, यहाँ भी वही चीज लिखी हुई, कटिंग स्पीड और ये फीड है। तीसरी होती है डेप्थ ऑफ कट, तो मैंने आपको यहाँ से समझाया है क्योंकि ये ऑपरेशन एक बार में परफॉर्म नहीं किए जा सकते, तो हम धीमे धीमे करके टूल को वर्कपीस के अंदर ले जाएंगे और मल्टीपल स्टेप्स में, मल्टीपल पासेस में एक अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन एंड कटिंग पैरामीटर, ये आप याद रखो। ये जो स्लाइड है आपको हमेशा काम की रहेगी, कोई भी मशीन पड़े। हाँ, उसमें कटिंग मोशन अलग हो सकती है, सेकेंडरी मोशन अलग हो सकती है, बट जो मशीनिंग पैरामीटर हैं वो तीन ही रहेंगे, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है, एक्चुअली जब मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब सपोज हमारा डिजायर था और ये नई सरफेस से बन के आ गई, तो इसमें जो मशीन सरफेस होती है इसके डायमेंशन और इसका टेक्सचर, मतलब एक कैसी है, रफ है कि स्मूथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आउटपुट पैरामीटर्स में आता है सरफेस फिनिश, इस वर्कपीस की एक्सटर्नल सरफेस की फिनिश इज सरफेस फिनिश। और इसको ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो पावर लगा, जो अपन ने इलेक्ट्रिकल मोटर से लिया, कटिंग फोर्स आया, कटिंग टूल ने दिया, उस पावर का रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। और तीसरा आता है मटेरियल रिमूवल रेट। मटेरियल रिमूवल रेट का मतलब होता है कि एट विच रेट the workpiece is going to, excess amount of material is going to be removed from the workpiece by this cutting tool. So these three are the important output parameters of a machining operation: surface finish, power requirement, it can be expressed as cutting force also, requirement of the cutting force also, and third one is the material removal rate. So these output parameters are dependent on these three input parameters. These three are the input parameters: cutting speed, feed and depth of cut. If we vary the cutting speed, you will get different values of surface finish, power requirements and material removal rate also. Similarly, if we change the feed, suppose एक बार आपने ली 1 mm per revolution, फिर आपने उसको चेंज करी 0.5 mm per revolution, कहीं पे आपने ली 2 mm per revolution, तो यदि हम ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर परफॉर्म करें और हम उसका एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि फीड का भी कुछ अफेक्ट होता है इन सारे आउटपुट पैरामीटर्स के ऊपर: सरफेस फिनिश, पावर रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल रिमूवल रेट। सिमिलरली डेप्थ ऑफ कट आल्सो हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन दीस आउटपुट पैरामीटर्स. So these three are the important input parameters and these three are the output parameters, where these three output parameters are affected by these three input parameters as well as, उसमें तो बहुत सारे हैं, what is the cutting material, cutting tool का material, what is tool geometry, what is the work material, तो ऐसे बहुत सारे कटिंग पैरामीटर्स होते हैं, बट दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट मशीनिंग पैरामीटर्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं म्यूट करके। कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटे? आगे चलें? No, sir. Okay. Yes, sir. Now we move on to second slide. We have to consider the types of lathe, classification of lathe. ठीक है ना। बिफोर दैट आई विल लाइक टू शो यू वन फिगर दैट इज ऑफ सेंटर लेथ। तो लेथ कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो कि आपको शुरुआत में भी दिखा चुका हूँ, बट इनिशियली वी हैव टू क्लासिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ लेथ्स. So I have written classified all kinds of lathes in 7 categories: bench lathe, speed lathe, engine lathe or center lathe, semi tool room lathe, semi automatic lathe, automatic lathe and special purpose lathe. अब बहुत ब्रीफ में अपन इनको समझते हैं कि हैं क्या चीज ये। तो बेंच लेथ इज द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द लेथ मशीन. If we go by this figure, then a lathe machine should have arrangement for holding and moving this workpiece and for holding and moving the cutting tool. तो शुरुआत को जो डेवलपमेंट था उसमें वर्कपीस को कहीं पे माउंट किया गया था और उसको रोटेट किया गया था. उसके लिए कौन पुली टाइप की चीज इस्तेमाल की गई थी, बेल्ट इस्तेमाल किया गया था, उससे वर्कपीस को रोटेट करते हैं. ठीक है ना. आप अभी भी गांव में वो चीज देख सकते हो. कई बार लोग जो धार लगाने आते हैं जिसमें पट्टा लेके वो ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू धार लगाते हैं. ठीक है ना. तो Yes, कुछ sir. इस प्रकार का अरेंजमेंट ही था.
तो ये शुरुआत का डेवलपमेंट है जिसमें वर्कपीस जो लेथ मशीन की ऑपरेटिव एलिमेंट्स जिसमें वर्कपीस को होल्ड करना, रोटेट करना है, टूल को होल्ड करना, मूव करना है, वो एक बेंच पे माउंट किए गए थे, इसलिए उस लेथ को बोला गया बेंच लेथ। इनिशियल डेवलपमेंट है। उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि वी शुड इंक्रीज द एक्चुअली मैनुअली ऑपरेशन में वर्कपीस को कुछ निश्चित आरपीएम तक घुमाया जा सकता है, उसके बियॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। बट जब मशीनिंग की गई तो उसमें पाया गया कि इसकी जो कटिंग स्पीड है दैट आल्सो अफेक्ट्स द सरफेस फिनिश ऑफ द वर्क पीस और दूसरे पैरामीटर है। तो इस एक आवश्यकता महसूस की गई कि व्हाई वी कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द वर्क पीस। तो जब वर्क पीस की स्पीड को चेंज करने की बात आई तो उस केस में इस्तेमाल किया गया तो दूसरा mechanism that can be the power derived from steam engine that can be made available by gear arrangement also। तो उस केस में सिर्फ उसकी स्पीड चेंज की गई, किसकी? वर्कपीस के रोटेशन की। तो उस लेथ का नाम दिया गया स्पीड लेथ। ठीक है ना। थर्ड जो लेथ लिखी गई है जो कि कॉमनली अधिकतर अभी भी अपन की वर्कशॉप में अवेलेबल होती है, आप कहीं भी जाओगे छोटी मोटी वर्कशॉप में तो आपको लेथ मिलेगी, उस लेथ को बोलते हैं इंजन लेथ या सेंटर लेथ। इंजन लेथ इसका जो नाम आता है वो इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो पावर इस्तेमाल की गई थी वो स्टीम इंजन से ड्राइव थी। मतलब जो नॉर्मली अपन देखेंगे कि जो मोटर लगी होती है उसमें इलेक्ट्रिकल पावर यूज होती है आजकल के दिनों में, लेकिन कुछ समय पहले क्या होता था, जब स्टीम इंजन काम करते थे उस समय स्टीम इंजन की जो पावर थी वो इस्तेमाल की जाती थी किसके लिए? फॉर रोटेशन ऑफ द लेथ मशीन, फॉर माने मशीनिंग ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन। दैट्स व्हाई दैट लेथ वाज नोन एज इंजन लेथ। अब उस लेथ में वर्कपीस को माउंट करने के लिए सेंटर्स इस्तेमाल किए गए थे। सेंटर्स दो नुकीले पॉइंट होते हैं, तो एक तरफ एक लगाया जाती है, दूसरी तरफ दूसरी लगाया जाता है और उसमें वर्कपीस को रोटेट कराया जाता है, इसलिए उसको सेंटर लेथ भी बोलते हैं, सेंटर्स बोलते हैं, उस लेथ को सेंटर लेथ बोलते हैं। तो अभी कॉमनली अपन जो वर्कशॉप में हमारे पास है वो एक इस टाइप की लेथ है, वो सेंटर लेथ अवेलेबल है। ठीक है ना। तो आपको बेंच लेथ समझ में आई होगी, शुरुआत का डेवलपमेंट, स्पीड बढ़ा दी गई तो स्पीड लेथ हो गई। और अभी जो लेथ अपन को दिखती है इस प्रकार की सेंटर लेथ है, ये हमारी वर्कशॉप में अवेलेबल है। ठीक है ना। चौथे नंबर की होती है टूल रूम लेथ। तो डू यू नो व्हाट इज अ टूल रूम? कि कोई किसी को कोई आइडिया है टूल रूम के बारे में? नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो एक इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम होता है इंडो जर्मन टूल रूम। That organization is joint collaboration of Indian government and the German government, and they work in the India for the development of new kinds of tools। टूल्स मतलब कटिंग टूल। तो कटिंग टूल की ज्योमेट्री को मॉडिफाई करने के लिए, मशीन करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वहाँ पे अवेलेबल माने हमको मशीन करनी पड़ती है, जिसको मशीन करने के लिए हमें इस प्रकार की एक लेथ चाहिए होती है जिसमें वर्कपीस को किसी भी एंगल पर माउंट किया जा सके, उसके बहुत सारे आरपीएम पॉसिबल हो, 4000 आरपीएम हो, 3000 भी हो, 100 भी हो, 200 भी है, 500 भी है। उसी प्रकार को टूल को हम किसी भी रिलेशन में माउंट कर सकें और मूव करा सकें। तो जो टूल रूम लेथ होती है दैट इज द मोस्ट वर्सेटाइल टाइप ऑफ लेथ एंड इट इज यूज्ड इन टूल रूम्स व्हिच वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स। ठीक है ना। जिसमें कि एक वर्सेटाइल लेथ की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मली ये टूल रूम में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया टूल रूम, और ये टूल के डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया टूल रूम लेथ। ठीक है ना। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में ये अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। अब एक नाम आता है सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक लेथ। सर नॉर्मली यू हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या बताया आपने? इंडो जर्मन टूल रूम। ये भोपाल ओके में भी सर। है, अवेलेबल है। जिसका नाम बदल के आजकल क्रिस्प हो गया ना, भोपाल में जो श्यामला हिल्स पे है, वो शुरुआत में उसका नाम होता था इंडो जर्मन टूल रूम, आजकल उसका नाम बदल के CRISP हो गया, क्रिस्प हो गया है। श्यामला हिल्स पे जो SP पॉलिटेक्निक है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल वो ट्रेनिंग वगैरह कराती, नई चीज में काम करती है। ठीक है। तो दूसरे यस प्रकार सर। की जो दो लेव होती हैं जो आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, ठीक है ना, उनको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक लेथ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी ऑटोमेटिक लेथ हो। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि विच टाइप ऑफ लेथ कैन बी कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोमेटिक लेथ एंड विच टाइप ऑफ लेथ शुड बी कॉल्ड एज ऑटोमेटिक लेथ। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि ऑल ऑपरेशंस ऑफ द मशीन टूल आर डन बाय मशीन टूल इटसेल्फ, देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन। वहां पे ऑपरेटर का इंटरवेंशन जीरो होगा, सारे के सारे काम मशीन करेगी। अब काम कौन से होने चाहिए? सपोज वी हैव टू परफॉर्म सिंपल टर्निंग ऑपरेशन, तो सबसे पहले आता है वी हैव टू
लोड द वर्कपीस ऑन टू द वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑन द लेथ मशीन, ये भी एक ऑपरेशन है, इसके बगैर मशीनिंग नहीं होगी। सेकंड आता है माउंटिंग ऑफ द कटिंग टूल ऑन द टूल पोस्ट, टूल को माउंट करना है। थर्ड आता है कि हमें कमांड देनी है सो दैट द टूल वर्कपीस विल रोटेट एंड टूल विल मूव along the axis of the workpiece after taking proper depth of cut, ठीक है। चौथा आता है कि जब मशीनिंग हो गई उस केस में कटिंग टूल रुकना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। इसके अलावा वर्कपीस को अनलोड करना है अपन को, फिनिश वर्कपीस को वहां पे, ठीक है। तो ऐसे मशीनिंग में सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व नहीं होती है, बहुत सारे दूसरे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो अपन जिनको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। हम किसको कंसिडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मशीनिंग को कंसिडर करते हैं। लेकिन मशीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे स्टेप्स रहते हैं, वो भी यदि मशीन टूल करने लगे, if all the operations including machining, actual machining are done by machine tool, then that machine is automatic machine। समझ में आया? ऑटोमेटिक मशीन में वर्कपीस भी ऑटोमेटिकली लोड होगा, टूल भी ऑटोमेटिकली लोड होगा, वर्कपीस ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, टूल ऑटोमेटिकली मूव होगा, ठीक है ना। मशीनिंग होगी, मशीनिंग के बाद टूल अपना अलग चला जाएगा, इसके बाद वर्कपीस का रोटेशन खत्म होगा, इसके बाद फिनिश्ड वर्कपीस वहां से अनलोड किया जाएगा। तो ये जितने स्टेटमेंट मैंने बोले हैं उसके लिए जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे मूवमेंट कौन करेगी? मशीन करेगी। तो यदि हमारे पास एक ऐसी लेथ है जो सारे के सारे ऑपरेशन खुद करती है, हालांकि उसकी प्रोग्रामिंग होगी, वो एक ह्यूमन ऑपरेटर कोई करेगा, पार्ट प्रोग्रामर करेगा उसको, लेकिन प्रोग्राम लोड करने का छोड़ दिया जाएगा। वहां पे कुछ रोबोट्स होंगे जो वर्कपीस को किसी जगह से प्लेस से पिक करेंगे और उसको लोड कराएंगे लेथ मशीन के ऊपर, फिर कहीं से टूल आएगा, वो टूल को होल्ड कराएगा वहां पे। तो ऐसी जो चीजें होंगी वहां पर अकेले लेथ मशीन काम नहीं कर रही होगी, उस लेथ मशीन के ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ रोबोट्स होंगे, कुछ दूसरी चीजें भी वहां पे होंगी, ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार की लेथ हमारे पास में है तभी वो ऑटोमेटिक लेथ है। अदरवाइज यदि एक भी ऑपरेशन ऑपरेटर कर रहा है, जैसे क्या किया, ऑपरेटर ने वर्कपीस को लोड कर दिया और बाकी सारे के सारे काम मशीन टूल खुद से कर रही है, तो वो मशीन कहलाएगी सेमी ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है। तो नॉर्मली जो सेमी ऑटोमेटिक लेथ होती है उसमें एक्चुअल मशीनिंग का जो काम होता है दैट इज डन बाय द मशीन टूल एंड रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस मे बी डन बाय द ह्यूमन ऑपरेटर। आगे बात समझ में? यस सर। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोमेटिक लेथ एंड सेमी ऑटोमेटिक लेथ? बता सकता है कोई क्या डिफरेंस होगा? एनीबॉडी? सर ऑटोमेटिक लेथ में टोटली जो वर्क होगा वर्क पे से सब मशीन के थ्रू होगा, बट सेमी सर उसमें कुछ ह्यूमन भी कर सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है ना। यस सर। हमको दो ऑपरेशन जो पढ़ने एक्चुअली कोर्स में नहीं, यदि समय मिला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कैप्स्टन और डेरिवेटिव दोनों पढ़ा दूंगा। दिस टू आर द सेमी ऑटोमेटिक लेथ। एक सातवें प्रकार की लेथ लिखी गई है विच इज कंसीडर्ड है स्पेशल पर्पज लेथ। अब स्पेशल पर्पज का मतलब होता है कि वो सिर्फ कुछ खास प्रकार के ऑपरेशंस कर पाएगी, सारे ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। So there are various types of operations which are done on a lathe machine, like turning में भी plain turning, step turning, taper turning, eccentric turning, फिर उसमें थ्रेडिंग आ गया, चैम्परिंग आ गया, ग्रूविंग आ गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, थ्रेडिंग है, ठीक है। तो यदि कोई एक लेथ एक प्रकार के ऑपरेशन को करने के लिए बना दी जाए तो फिर उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज लेथ। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक BHEL अपने भोपाल में है। BHEL इज एंगेज इन डेवलपिंग टरबाइन जनरेटर्स, ठीक है ना। तो जनरेटर्स का जो शाफ्ट होता है दैट कुड बी हैविंग 20-30 फीट लेंथ, 20-30 फीट लेंथ का हो सकता है, डायमीटर भी 1 मीटर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। तो hold and support this kind of workpiece we need to have a very big machine, ठीक है ना। हमने बहुत बड़ी मशीन बना ली, लेथ मशीन बना ली जिसमें 1 मीटर डायमीटर के वर्कपीस को होल्ड किया जा सकता है, उसकी लेंथ भी 20 फीट हो सकती है। बट वो लेथ मशीन छोटे वर्कपीस पे काम नहीं कर पाएगी। हम सोचें कि 20 डायमीटर के वर्कपीस पे मशीन करा लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, टूल है, वो कुछ अलग प्रकार के वहां पे होंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इस प्रकार की लेथ जो कुछ स्पेशल पर्पज के लिए बनी होती है, हो सकता है कोई लेथ सिर्फ टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए डेवलप कर दी जाए, हो सकता है कुछ लेथ सिर्फ थ्रेडिंग के लिए डेवलप कर दी जाए। तो इस प्रकार की लेथ को बोला जाता है स्पेशल पर्पज लेथ। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ लेथ्स, ठीक है ना। यदि यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
आगे चलते हैं। सर ऑटोमेटिक लेथ अभी मतलब वर्किंग में है जैसे टोटली जिसमें हाँ मतलब होती है, वुमेन। बिल्कुल होती है, बिल्कुल जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में है, इवन इन यस BHEL सर। आल्सो यू कैन सी ऑटोमेटिक लेथ आल्सो देयर, ठीक है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आजकल जिसमें रोबोट काम करते हैं, ह्यूमन मतलब बड़े बड़े प्लांट में कुल मिला के 10-20 आदमी काम करते हैं और बाकी अधिकतर काम वहाँ पे रोबोट और CNC ऑपरेटेड मशीन के द्वारा ही होता है, तो ऑटोमेटिक मशीन होती हैं। ओके सर। In this figure you can see the various parts of a center lathe. अब यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स आपको इसमें दिख रहे होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। I have written the important parts of lathe machine on left side where you can see 8 number of important parts. ठीक है, सबसे पहले आता है leg. So in this figure you can see these two legs. These are made of casting. एक प्रकार की कास्टिंग के द्वारा मतलब इनको कास्टिंग भी बोलते हैं और कास्टिंग से बनाए गए हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो ऑपरेटिव एलिमेंट्स ये हैं, इस मशीन पर काम करने के लिए आपको ये हैंड व्हील दिख रहे होंगे, कहीं पर कुछ लीवर दिख रहा हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ये दिख रहा है लीवर, ये हैंड व्हील्स हैं, तो ये इतने हाइट पे होने चाहिए कि वो ह्यूमन ऑपरेटर की हाइट को शूट करे। तो इस ऑपरेटिव एलिमेंट्स को अपनी जगह पर ले जाने के लिए हमने क्या कर दी, इसकी हाइट इंक्रीज की, किसके द्वारा? इन कास्टिंग्स के द्वारा। इनको बोलते हैं लेग्स, इनका और कोई पर्पज नहीं होता है, ठीक है ना। These are used to absorb vibration also when actual machining is going on the lathe machine. फिर आया बेड। अब ये जो ऑपरेटिव एलिमेंट्स हैं जिसमें वर्कपीस रोटेट करेगा, ये कटिंग टूल की कैरेज लगाया गया है, टूल मूव करेगा, तो ये किसी दूसरी चीज के ऊपर मूव करते हैं या माउंट होते हैं, तो उस चीज को बोला गया है बेड। तो इस लेग के अलावा आपको ये जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, एक दूसरी प्रकार की कास्टिंग है, इसको बोला गया है बेड। बेड के टॉप में हमको इस कैरेज को स्लाइड कराना है, टेल स्टॉक को स्लाइड कराना है, तो इसमें लिखे हैं वेज, जिसका नाम होता है बेड वेज, स्लाइड वेज और गाइड वेज। समझ में आया? सबसे पहले लेग, लेग के बाद बेड, बेड के ऊपर बेड वेज। सिंस दीज वेज आर प्रोवाइडेड ओवर टॉप ऑफ द बेड ऑफ द lathe मशीन, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज बेड वेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है इस कैरेज के और इनके बीच का, वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, चाहे ये टेल स्टॉक इसके ऊपर स्लाइड करे या कैरेज इसके ऊपर स्लाइड करे, इसलिए इनको बोला गया है स्लाइड वेज। सेम चीज है, एक ही वेज है, उसका नाम बेड वेज भी है, उसका नाम स्लाइड वेज भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, जो मैंने पहली फिगर में आपको दिखाया, यहाँ पे टूल और वर्कपीस के बीच में मोशन तो होगी, लेकिन टूल का मूवमेंट गाइडेड होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज मशीनिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ये जो गाइडवेज रहती हैं, ये बेड वेज रहती हैं, वो टूल और वर्कपीस की मोशन को गाइड भी करती हैं। हम चाहें तो टूल को कितना अंदर करना है, कितना पीछे करना है, स्लाइड वेज के थ्रू होता है, इसलिए इनको गाइड वेज भी बोलते हैं। तो वो वही चीजें नॉर्मली ये 2 नंबर में होती, पैरेलल स्ट्रेट आपको दिखेगा टॉप व्यू में यहाँ पे जब आप वर्कशॉप में आओगे, वैसे भी, ठीक है। तो इनको बेड वेज भी बोलते हैं, स्लाइड वेज बोलते हैं और गाइड वेज बोलते हैं। फिर आता है हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक क्या है? ये इस मशीन की लेफ्ट साइड में एक असेंबली होती है जो वर्कपीस को डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड प्रोवाइड करने के लिए गियरिंग एलिमेंट इसके अंदर माउंटेड होते हैं। कोई ऑपरेशन करना है, कौन सी स्पीड चाहिए, उसके अंदर गियरिंग एलिमेंट माउंटेड होते हैं, तो उसको बोला गया है हेड स्टॉक। टेल स्टॉक, ये जो असेंबली है दिस इज कंसीडर्ड एज टेल स्टॉक। क्या होता है, जब वर्कपीस की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हम वर्कपीस को यहाँ माउंट करके रोटेट कराते हैं, तो वर्कपीस इस एंड पर डिफ्लेक्ट करना लगता है, ठीक है ना। तो वर्कपीस डिफ्लेक्ट ना करे अपनी जगह पे, तो हम शुरुआत में क्या करते हैं, वर्कपीस के एक एंड में हल्का सा छेद बना देते हैं, थोड़ा कुछ 5-10 mm लंबा, और उसके अंदर इस नुकीले पॉइंट को रेस्ट करा देते हैं इस पूरे असेंबली को मूव करके। सो दिस टेल स्टॉक इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द वर्कपीस फ्रॉम द अदर एंड ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। इसके बाद आता कैरेज। तो ये पूरा का पूरा जो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि टूल को सपोर्ट करने के लिए और टूल को अलग अलग पोजीशन में मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज कैरेज। इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, समझ लो। आपको हेड स्टॉक समझ में आया, ये वाली चीज, टेल स्टॉक समझ में आ गया, ये वाली चीज। अब यहाँ पे ये जो है दिस इज नोन एज कैरेज। इट हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सैडल एंड एप्रॉन। तो सैडल कौन सा पार्ट है? टॉप का जितना पोर्शन है ऊपर से अपन को दिखेगा, ये सारा का सारा सैडल है, और फ्रंट का ये जो पोर्शन अपन को दिखता है दिस इज नोन एज एप्रन। कोई डाउट यहाँ तक? कैरेज के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कर दिए हमने, सैडल एंड एप्रन। टॉप पोर्शन इज नोन एज सैडल एंड फ्रंट पोर्शन इज नोन एज एप्रन, APRON। ये दिखा भी लिखा है, देखो ये एप्रन लिखा ना यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर।
और ये कैरेज है, जिसमें कैरेज के ये पूरा का पूरा कैरेज है। कैरेज का टॉप का पोर्शन क्या है? सैडल है। अब सैडल में ऊपर क्या होता है? तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक का नाम क्रॉस स्लाइड लिखा है, दूसरे का कंपाउंड रेस्ट लिखा है, तीसरे का टूल पोस्ट लिखा है। हमारा जो टूल रहता है अल्टीमेटली वो टूल पोस्ट में जाके लगता है। जब हम टूल को अलोंग द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस मूव करना चाहते हैं तो उस पूरी कैरेज को मूव करना होता है। जब टूल को वर्कपीस के एक्सिस के 90 डिग्री में मूव करना चाहते हैं तो क्रॉस स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, और किसी एंगल पर मूव करने के लिए कंपाउंड रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें एक लिखा है लीड स्क्रू और दूसरा लिखा है फीड रॉड। तो एग्जैक्ट स्पष्ट तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक लीड स्क्रू है इन दोनों में से, ये लिखा गया लीड स्क्रू, और एक है फीड रॉड। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम इस कैरेज को और टूल को मैन्युअली मूव कर सकते हैं, हम इस टूल या कैरेज को ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक मोशन देने के लिए यहाँ दो अरेंजमेंट दिए गए हैं, वन इज लीड स्क्रू, अनदर इज फीड रॉड। आप लोग थ्रेड समझते होंगे, थ्रेड मतलब थ्रेडेड पोर्शन।